جو ہے لہراؤ اونچا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ بس اعلان نبوت کرنا تھا کہ لوگ ہماری بن جاتے ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، خون کی کنکریوں کی بارش کرنے والے دشمن بن جاتے ہیں، آپ کی جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں نے پڑھ لیا وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، تو صحابہ کرام نے لبیک کہہ کر کے جو ہے ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ کلمہ کون پڑھا ہے؟ اس وقت کلمہ کو پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لوگوں کو معلوم ہو جاتا، اس کو پکڑ کے زمین میں لٹا دیا جاتا اور کیلیں ٹھوک دی جاتی، کسی کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا اور اس کے سینے میں بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کسی کو آگ کے انگارے ان آگ کو جلا کر کے اس انگارے میں لٹایا جاتا، کسی کو پانی میں ڈبا دیا جاتا، کسی کو گرم کھولتا ہوا تیل میں ڈال دیا جاتا۔ یہ کلمہ کے اندر وہ ایک کلمہ پڑھے تھے، ان کو اتنا لذت مزہ آ رہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو ان کے دشمنوں نے جو ہے اتنی سختی اور تکلیف دینے کے باوجود بھی کلمہ پڑھنے میں ان کو لذت محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ مزہ محسوس کر رہے تھے۔ ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ایک کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، جنت ہی نہیں مل جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے بال بچوں کو یتیم کیا ہے۔ ایک ایک صحابہ نے اتنی قربانی دی ہے کہ لاکھوں انسان نہیں دے سکتا۔ اپنے زہر تن من دھن مال بچے مال متا سب کو لٹا دیا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دیا ہے۔ میدان کے اندر ہے، جنگ کے اندر ہے، ہاتھ کٹ چکا ہے، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، خون سے لکپت ہے، یہاں تک کہ سر قلم کیا جاتا ہے۔ مقدموں لوگوں، میرے خون کو دیکھو، میرے جسم کے جو ہے زخم کو دیکھو، پریشان نہ ہو، آنکھ سے آنسو نہ بہاؤ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جب جو ہے شہیدوں سے اللہ میدان محشر میں پوچھے گا، قیامت کے دن پوچھے گا، اے شہید بتا تجھے کیا چاہیے، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ شہداء کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھے ایک جان دی تھی، اگر 100 بھی جان دیتا تو تیرے راہ میں جو جان دینے میں جو مزہ ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ میں باری باری 100 جان کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ ایک انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، آج ایک ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہی کلمہ ہے۔ اگر مرتے دم کسی کی عنایت ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب دونوں کی جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت ان پر واجب ہو گئی۔ ایمان کی نعمت ابو جو ہے آپ جو ہے میرے دوست بزرگوں، جو حضرت بلال حبشی سے پوچھیے، جلیلہ سے پوچھیے، جن کی آنکھیں نکال دی گئیں ایمان لانے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے دونوں آنکھ نکال دی گئے۔ اور اللہ کے بندوں کو پوچھیے، صحابی رسول کو پنجرے توڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی جو ہے
जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, आप तिलावत फरमाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई है और रात रात भर नमाजों के अंदर कुरान पढ़ने का एहतमाम किया है। आज हमें देखने का मौका नहीं, आज हमें देखने की फुर्सत नहीं, हम भी नहीं पढ़ते, अपने बाल बच्चों की भी फिक्र नहीं करते हैं। यही वो कुरान है मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारे घरों के अंदर कैद करके रखे हुए हैं, ना जाने कब से जुल्दान के अंदर बंद रखे हैं, वो कपड़ा गंदा हो चुका है, उसके अंदर गर्द पड़ चुके हैं, हमें तौफीक नहीं मिली इसको निकाल के हम देखें और पढ़े। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब दुनिया वालों ने अल्लाह को भुला दिया, खिलाने वाले को भुला दिया, पिलाने वाले को भुला दिया, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके दुनिया के अंदर भेजा। जाओ मेरे कमली वाले, दुनिया के अंदर जाओ, लोगों ने खिलाने वाले को, पिलाने वाले को, पैदा करने वाले को भुला दिया। यही अगर कल मेरे दोस्त जाओ और जो है मेरे नाम जो है बुलंद करो और तौहीद के झंडा को ऊंचा करो, आला करो, गाना करो। चुनांचे मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम जो आज कलीमा पढ़ते हैं, यही कलीमा अगर अबू जहल पढ़ लेता, यही कलीमा अगर इतना आसान होता कि अबू जहल पढ़ लेता, अबू जहल बेईमान की हालत में नहीं मरता, शुतबा शैबा बेईमानी हालत में नहीं मरता, और जो है खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा जो है इस्लाम की दौलत से महरूम होकर दुनिया से नहीं जाता, उबय बिन खल्फ दुनिया से महरूम होकर के नहीं जाता। यही कलमा पढ़ना था कि कलमा भी पढ़े, बुत की परस्ती भी करे और कलमा भी पढ़े, बुतों को हाजत रवा भी समझे, कलमा भी पढ़े और झूठ भी बोले, कलमा भी पढ़े, हराम भी करे और कलमा भी पढ़े, जिना भी करे, गुनाह के काम में मुंतकिब हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन्हें समझ नहीं आई थी, उन्हें समझ में आई थी। अगर हमने ये कलीमा पढ़ लिया है तो अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुसलमान घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा तो 2-3 दिन का होता है, आप कहेंगे उसके कान में अजान दी जाती है, कान में तकबीर क्यों? 70 साल 80 साल 90 साल का बुढ़ा मस्जिद में आता नमाज अजान सुन के, इस बच्चे के कान में अजान देने से क्या होगा? मुझे बताना पड़ेगा। मेरे राबती आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, चुनांचे मुसलमान घर में पैदा हुआ है, उसके कान में अजान देना है, दूसरे कान में तकबीर कहना है, और उसके जो है मेरे दोस्त बुजुर्गों, अजान भी हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, उसके वक्फे में जो 60 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल की जो वक्फे में जो जिंदगी है, सिर्फ नमाज बाकी है। चुनांचे जो है इंसान जब कलीमा पढ़ लेता है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के ताबे हो जाता है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कलीमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अब तक हम ताबे नहीं हो सके, अब तक उसके फरमान को अपने जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं कर सके। अफसोस है, अल्लाह का कुरान बार बार ऐलान करके कहता है, जब इंसान की तारीख सफेद हो जाती है, यहाँ तक कि इंसान कब्र के करीब हो जाता है, अल्लाह अपने कुरान को सामने लाता है, बार बार कहता है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो जिन्होंने कलीमा पढ़ा है, उसके इख्तियार में खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, वो मनमानी खा नहीं सकता, मनमानी पी नहीं सकता, उसका चलना फिरना उठना बैठना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होनी चाहिए। जिन्होंने कलीमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने किराम ने कलीमा पढ़ा था और कुर्बानी दी थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बड़े इख्तिसार के साथ एक सहाबी रसूल है, साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबे किराम ऐसे हैं, ऐसे जाननिसार हैं, जान की बाजी लगाने वाले हैं कि आपके इशारे पर अपने जानों को कुर्बान करने वाले हैं। चुनांचे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, उनकी क़यादत में और
वो गिलास को सामने फेंक दे। साहब इकराम फिर आगे बढ़ते चलते चलते जंगल आ जाता है, चुनांचे शाम का वक्त हो जाता है। अब यहाँ बयान करना है। लोगों ने देखा, कुछ लोग उधर से आ रहे थे, कहा यहाँ आप बयान न करें, यहाँ तो बड़े बड़े शेर हैं, बड़े बड़े चीते हैं और यहाँ हाथी है, ना जाने कैसे कैसे जानवर हैं, आप लोगों को खा जाएगा। चुनांचे साहब इकराम ने कहा अजीब बात है, मैं अल्लाह के काम के दीन के काम के निकला, मुझे लोग जो है जानवर खा जाए। चुनांचे एक साहबी रसूल को, नौजवान को दरख्त पर चढ़ाते हैं कि आवाज दो। चुनांचे वो साहबी रसूल आवाज देते हैं, ऐ जंगल के रहने वाले चीतों, शेरों, हाथियों, लोमड़ियों, जितने भी किसी के दरिंदों, जो कुछ भी इस जंगल के अंदर हो, एक रात के लिए खाली कर दो। वो तमाम के तमाम जानवरों ने दहाड़ मारते हुए चीखते हुए पूरे जंगल को खाली कर दिया। एक कलीमा उन्होंने पढ़ा था, एक कलीमा हम पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन रसूल हज़रत बिलाल से पूछे ईमान की कीमत क्या है। उन्होंने कैसी कुर्बानी दी है कि मारने वाले थक जाते थे, लेकिन वो जो है सदाएं लगाने में नहीं थकते थे। अहद अहद अल्लाह एक है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आइए हज़रत बिलाल हफ़्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में चलते हैं। ऐ बिलाल, इतने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों ना जाने निशावत करने लगे, क्यों इतनी मोहब्बत करने लगे? हज़रत बिलाल बताएंगे, जिस वक्त जो है मैं बात एक जो है मालिक के अंदर में मैं गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, चुनांचे मेरा जिस्म कांप रहा है, बुखार है, मैं मुझे बहुत तबीयत ठीक नहीं है, मैं बादशाह जो है अपने मालिक के पास जाता हूँ और मालिक से कहता हूँ मुझे 2 दिन की कुछ वक्त जो है 2 रोज के लिए हमें मौका चाहिए, हमें आराम की जरूरत है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। वो मालिक कहता है जाओ, तुम्हें जो है एक जूती से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, जानवर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, जाओ अपने काम में लग जाओ। हज़रत बिलाल हफ़्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसू है और जो है चक्की चला रहे हैं, जा रो रहे हैं। अचानक एक नूरानी चेहरा वाला दाखिल होता है, ए खुदा के बंदे क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? हज़रत बिलाल को कहने लगते, आज तक इस जगह में कोई पूछने वाला, गरीबों का पूछने वाला कोई नहीं है, कौन है जो गरीबों को जो है खैरियत पूछने आया है? कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या वजह है? तुम्हारे आंखों में कैसी आंसू है? कहा मेरा तबीयत खराब है और बुखार है, मेरा जिस्म कांप रहा है, मैं अपने मालिक के पास गया था, मालिक ने ये कहा है। चुनांचे कहा जाओ तुम आराम करो, मैं जो है तुम आराम करो। कहा मैं आराम करूंगा, मेरी जगह चक्की कौन पीसेगा? कहा मैं पीसूंगा। वो जो है हज़रत बिलाल हफ़्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले जाते हैं, आराम फरमाते हैं, आराम से फारिग होकर के जब उनकी तबीयत ठीक हो जाती है वापिस आते हैं और देखते हैं कि वो नूरानी चेहरा वाला चक्की चला रहे हैं। कहा ओ खुदा के बंदे, अब आप जा सकते हो, लेकिन जरा अपना नाम तो बताते जाओ कि तुम कौन हो? कहा कोई और नहीं, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं। चुनांचे मेरे दोस्त को ये सबक दिया है, ये मेरे दोस्त दर्श दिया है, हमें अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना होगा, अल्लाह के रसूल से दिल की गहराई से मोहब्बत करना होगा। जिस कलीमा को पढ़ा है, इस कलीमा को पढ़ने के बाद कोई इंसान की कोई इख्तियार बाकी नहीं है। अब खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, लेना देना, ये तमाम